morning, students. Welcome to the SST class. Today I am going to continue chapter history, chapter 7, Ashoka, the emperor who gave up war. In the previous class, I have explained you regarding Ashoka's kingdom, how he got his empire, who was his grandfather, and what were the important cities of Ashoka's empire, who were living in the cities, who collected the taxes, who were paying taxes in Ashoka's empire, and the last topic was how he was ruling the empire and what were the differences between Ashoka's empire and the kingdom. So today we are going to start about the following topics. Number 1, Ashoka, a unique ruler. After that we will discuss Ashoka's war in Kalinga, then Ashoka's Dhamma, and the last topic of today is messages to his subjects. So let us start our first topic, Ashoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. In the previous class, means in the first chapter, you have studied about the inscriptions and the manuscript. Manuscripts were written by hand on soft surface and inscriptions were written on hard surface, like on pillar, stone, that is type. So Ashoka, whatever has given his instruction to the subjects, all was found in written. It was found inscribed on stone or on hard surface. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. The script was Brahmi and it was written in Prakrit, which was similar as Sanskrit. उसकी जो भी उसकी लिखावट मिली वो प्राकृत में मिली और उस लिखावट को हम लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं. Now it is the first topic which I have explained you regarding a unique ruler. That's why he is known in history a unique ruler. उसके पहले those who were the king in his empire or in the previous, there was no trace of their messages found on written. But Ashoka's messages were found in inscriptions. Written में मिला, इसीलिए उसको हिस्ट्री में यूनिक रूलर के नाम से हम जानते हैं. Now our next topic is Ashoka's war in Kalinga. Kalinga, first you know the real name of Kalinga. Nowadays we are calling Odisha. So Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. आज हम जिसे उड़ीसा के नाम से जानते हैं उसका एक बहुत पुराना नाम कलिंगा था. अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्कर कलिंगा. उसी कलिंगा को जीतने के लिए अशोका ने उस पर आक्रमण किया था. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया ही हैड कवर्ड बट कलिंगा वाज नॉट इन हिज एम्पायर. सो ही वांटेड टू विन द कलिंगा एंड ही अटैक्ड ऑन कलिंगा. ही वाज सो हॉरिफाइड. ही कॉन्कर अ कलिंगा. But he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. अशोका पे कलिंगा पे आक्रमण करने के बाद उसको उसकी विजय मिली, वो जीत गया. लेकिन वहाँ का जो उसने दृश्य देखा, near about 1.5 lakh people were killed and 1.5 lakh people were made prisoners. And he was so much horrified when he saw the violence and bloodshed. इतने लोगों की मृत्यु और इतने लोगों को बंदी बना लिए का दृश्य देखकर अशोका एकदम अंदर से डर गया. And he decided not to fight any more wars. और उस कलिंगा युद्ध के बाद he decided कि फर्दर आगे वो भविष्य में कभी कोई युद्ध नहीं करेगा. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. युद्ध जीतने के बाद भी उसने उसका परित्याग किया और he decided कि अब वो भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा और अपनी सीमा को whatever his empire he will not exceed it. उसको वो आगे नहीं बढ़ाएगा. जहाँ तक उसका एम्पायर है वो उतना ही दूर उसको सीमित करके उसी पर ध्यान देगा.
नाउ अशोका's inscription describing the कलिंगा वार, उसके कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें कलिंगा वार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बारे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अपने इंस्क्रिप्शंस में उसने जो लिखा है दैट इज नंबर 1, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कांकर्ड कलिंगा। 8 साल शासन करने के बाद उसने कलिंगा पर विजय प्राप्त की। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. I have explained you कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु उस युद्ध में हुई। At that time the population was not like today. उस समय जो पॉपुलेशन था वो भी कम था, उस हिसाब से 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गया। This filled me with sorrow, और उसने आगे अपने इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये इतने लोगों की मृत्यु और इतने लोगों का बंदी बनाना उसके लिए बहुत बड़ा दुखदायी था। Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. जब भी कोई युद्ध होता है बड़े पैमाने पर तो बहुत से लोग युद्ध में मारे जाते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं those who were not involved in the war but they were killed. जो लोगों को युद्ध से कोई मतलब नहीं है फिर भी वे मारे जाते हैं। Like monks and Brahmins, they were also killed in Kalinga war. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die. उस युद्ध जब चलता है तो ये कोई नहीं देखता है कि कौन किसके लिए दया वाला आदमी है या कौन किसके लिए दुश्मन है। उसमें जो भी सामने आता है दुश्मन के वे लोग मारे जाते हैं। That is why I am sad and have decided to observe Dhamma. और इस युद्ध के बाद मीन्स कलिंगा वॉर के बाद ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा। धम्मा मीन्स हियर धर्म, जिसको हम संस्कृत में धर्म बोलते हैं, और ये धम्मा प्राकृत वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, धर्म, दैट इज रिलेटेड विद धर्म। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। अगर हम ताकत के साथ किसी पर विजय प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हम धर्म के नाम से किसी को अच्छा संदेश देके हम उस पर विजय प्राप्त करें। दैट इज फार बेटर देन गोइंग टू वॉर। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. अशोका आगे अपने इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखता है कि whatever things he has written in this inscription, for what? For his son and grandson. वो इसलिए लिखता है कि आने वाले समय में भविष्य में उसका बेटा या उसका ग्रैंडसन भी युद्ध का परित्याग करे, वो लोग भी धर्म के नाम पर काम करें और इस तरह कलिंगा वार की तरह वे लोग आगे कोई युद्ध करके अपनी सीमाओं को आगे नहीं बढ़ाए। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अशोका धम्मा। सो ही अशोका आफ्टर द वार ऑफ कलिंगा ही एक्सेप्टेड धम्मा। ओके, द मीनिंग ऑफ धम्मा इज धर्म, इन संस्कृत वी कॉल इट धर्म। Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. आजकल हम लोग जैसे देवी देवता या मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अशोका का जो धर्म था उसमें ये सब का इम्पोर्टेंस नहीं था कि हम किसी मूर्ति की पूजा करें या किसी पर्टिकुलर देवता को माने या हम किसी जानवर को कोई पूजा पाठ के दौरान बलि दें, उसके भी वो अगेंस्ट में था अशोका का धर्म। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. उसका क्या कहना था? He was supposing that a ruler was just like a father. जो भी राजा होता है या जो एम्पायर होता है किसी एम्पायर का, उसका वर्क एज अ फादर की तरह होना चाहिए। जैसे एक फादर अपने बच्चों को अच्छा राह दिखाता है, सही राह पर मार्गदर्शन करता है, ठीक वैसे ही अशोका was thinking that the emperor or the king was like a father for his subject. अपनी जनता के लिए वे लोग किसकी तरह है? एक पिता की तरह है। एक पिता की तरह उन्हें अपनी सारी प्रजा को या सारी जनता को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। He was also inspired by the teaching of Buddha. At that time, Gautam Buddha and Mahavir Jain both belonged to Sangha and Ganas. So Ashoka was also inspired for the teaching of Buddha के जो भी शिक्षा थी उससे अशोका बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और उसने अपने धम्मा में उसको भी स्थान दिया है। Now there were a number of problems that troubled him. Why Ashoka accepted Dhamma?
अशोका के बारे में जो मैंने बताया कि his Dhamma, so he was troubled. A lot of problems arises in his life which made him troubled, and that's why he accepted Dhamma. What were these problems? Now I am going to explain you. First of all, people in the empire followed different religions. अब अशोका का इतना बड़ा एम्पायर था, जब आप देख रहे हो मैप में नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट पूरा कैप्चर किए हुए था, और उसमें स्वाभाविक है डिफरेंट रिलीजन्स वेयर देयर इन द एम्पायर, एंड समटाइम्स दिस रिलीजन्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कभी कभी इस धर्म को लेकर लोगों के बीच में आपस में तनाव हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, एंड दैट ट्रबल्ड अशोका, और इसकी वजह से अशोका को बहुत तकलीफ होती थी, बिकॉज in his Dhamma all the religions are equal. He believed that all the religions are equal. And number two, Ashoka, why the problem which troubled him, point number second is animals were sacrificed. उन दिनों में when we are going to study about Ashoka's empire, at that time animals were also sacrificed. कभी भी कोई पूजा है या किसी भी घर में कोई ओकेजन है तो उसमें वे लोग जानवरों की बलि दिया करते थे, बट इट वॉज अगेंस्ट अशोका. Slaves and servants were ill treated. At that time, all those who were the prisoners, they were kept as the slaves, and people of his empire thought that the slaves and servants were like their property. उसको वो किसी भी तरह में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. And that troubled Ashoka. Besides, there were quarrels in families. Families में भी कभी कभी आपस में नोक झोंक या लड़ाई होती है, कभी कभी पड़ोसियों से भी लड़ाई होती है, जो हम अभी भी फील करते हैं. And it was also at the Ashoka's time also, and which troubled Ashoka. So here we came to know about the 5 points which troubled Ashoka. Number 1, due to different religions, sometimes it occurred conflict, animals were sacrificed. Third point, slaves and servants were ill treated. There were quarrels in families and amongst neighbors. So these were the problems, and Ashoka then decided to solve all these problems. For solving these problems, he deputed some ministers or some persons, and that were known as Dhamma Mahamatta. उसने इन सारी जो घटनाओं को मैंने आपसे भी बताया, उसको सॉल्व करने के लिए उसने कुछ मैसेंजर्स को नियुक्त किए, कुछ लोगों को नियुक्ति की, जिसको हम धम्मा महामत्ता के नाम से जानते हैं, who went from place to place teaching people about Dhamma. जो लोग धर्म के बारे में लोगों को उसके धर्म से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बताते थे अलग अलग जगहों पे जाके. Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. इसके अलावा जो भी उसके मैसेजेस थे, they were inscribed on pillars on rocks, and the officials were given instruction to read for those who were illiterate. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको वे लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उनको कि what were written on the rock or on the pillar. So these Dhamma Mahamatta explained them regarding the Dhamma. धर्म के बारे में वे लोग उसको पढ़ के एक्सप्लेन करते थे उन लोगों के. Okay, now Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands. उसने अपने एम्पायर में तो धर्म के एक्सपेंड करने के लिए मैसेंजर्स भेजे भी, उसके अलावा उसने फार लैंड दूर दराज देशों में भी उसने अपने धर्म के प्रचार के लिए, धम्मा के प्रचार के लिए कुछ मैसेंजर्स को भेजे, और उसमें उसका बेटा और बेटी भी था. द नेम ऑफ हिज सन वाज महेंद्र एंड द नेम ऑफ हिज डॉटर वाज संघमित्रा. बोथ हैव वेंट फॉर कंट्रीज टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा, लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. इन 4 देशों में उसने धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा, बेटी और अदर मैसेंजर्स को भेजा. ही also, उसने इसके अलावा भी साधारण जनता के लिए अपने सब्जेक्ट में पब्लिक, those who were living in his empire, उन लोगों के लिए भी उसने कुछ अच्छे अच्छे काम करवाए. Like he built roads. Number 2, he built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human and
ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ही डग वेल्स, ये सब उसने साधारण सब जनता के लिए उसने कुछ ऐसे काम कराए जिसकी वजह से आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट. What messages he has given to his subject, to his pupil, to his empire's persons. Okay, that is, people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कभी कोई घर में कोई फंक्शन होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है या कहीं कोई बाहर जाता है तो कुछ रीति रिवाज करते हैं उस समय में. Those rituals are not useful, but Ashoka was believing that जो हम ये सब पूजा पाठ या सेक्रीफाइस करते हैं या हवन करते हैं, जो भी करते हैं, ये कोई फ्रूटफुल नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है. That is the view of Ashoka. Okay. If instead, उसका कहना था इसके बदले में अगर हम कोई रिचुअल्स कर रहे हैं या कोई सेक्रीफाइस किसी जानवर का कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या करना चाहिए? पीपल ऑब्जर्व देयर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल. व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? उसके बदले हम कुछ अच्छी अभ्यास करें, कोई अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, बशर्ते कि हम एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा ओकेजन करके पूजा पाठ कर रहे हैं. दैट इज नॉट फ्रूटफुल. These are being gentle with slaves and servants. उसका कहना था इन सब के बदले हम क्या करें? हम जो हमारे सर्वेंट्स हैं, जो हमारे स्लेव्स हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए. उनके प्रति हम अपने व्यवहार को अच्छा करें. रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, हम पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? सो ही वांटेड दैट वी शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर. किसी के भी बड़े, जो भी बड़े हैं, उनका हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए. ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सभी जीव जंतु, जो भी जीव है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, सबके साथ दया का बर्ताव होना चाहिए. ही वॉज फीलिंग दैट एवरीबडी हैज अ पेन इन हिज बॉडी. अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसको भी वही तकलीफ होती है जो हमें होती है. गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स. उसका कहना था कि हम अपने धर्म की अगर बहुत बड़ाई कर रहे हैं 10 लोगों के बीच में और दूसरे के धर्म की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड. इट मीन्स वी आर क्रिटिसाइजिंग आवर ओन रिलीजन. अगर हम दूसरे धर्म की आलोचना कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा धर्म हमको ये सिखा रहा है कि हम दूसरे धर्म के बारे में गलत बात बोलें. ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर रिलीजन. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर हम दूसरे धर्म की आलोचना कर रहे हैं तो हम अपने धर्म के को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं through this way. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. हमें दूसरे भी धर्म को उतना ही इज्जत देना चाहिए जितना हम अपने धर्म को देते हैं. So all the topics I have explained you. Now let us discuss about the question answer. Okay students, that's all for today. Thank you.